This is your computer application class, and today we will start new topic which is operating system. In this class we will discuss the introduction of operating system, architecture of computer, what is operating system, types of operating system and different functions of operating system, and some special features of operating system. So this is the architecture of computer system, where the operating system is interconnected with the hardware and the programming language and application programs. This is the detailed layered view of computer, where the operating system is between the hardware, the machine code and programming languages. System software, application software and driver programs. तो ऑपरेटिंग सिस्टम आता कहाँ था? ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? इट परफॉर्म एसेंशियल ऑपरेशन टास्क. एप्लीकेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो स्पेसिफिक टास्क फॉर यूज़र्स, ये स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं. ड्राइवर प्रोग्राम्स क्या होते हैं? डिवाइस ड्राइवर स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक इनपुट और आउटपुट देते हैं और कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम: एप्लीकेशन प्रोग्राम, सिस्टम प्रोग्राम्स एंड ड्राइवर प्रोग्राम्स. So application programs, program used by the user to perform a task. And what is system programs? An interface between user and computer. And driver programs that communicate input devices, output devices with the computer. Now the hierarchy of computer softwares. सबसे पहले देखिए, वर्ड प्रोसेसर आते हैं, फिर इमेज एडिटिंग प्रोग्राम्स आते हैं, फिर डेटाबेस प्रोग्राम आते हैं और स्प्रेडशीट. इन जो हैं ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, और उसके बाद क्या आता है? हार्डवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? Operating system is a collection of programs which control the resources of a computer system. Operating system written in low level language, that is machine dependent languages होती हैं. And operating system is an interface between the user and the hardware. Operating system, when the computer is on, operating system will first load into the main memory. Basic function of operating system. First, device configuration. It control peripheral devices connected to the computer. File management. Transfer files between main memory and secondary storage, and manage files folder and allocates the secondary storage spaces and provide file protection and recovery. The next function of operating system is memory management. It allocates the use of random access memory to requesting processes. And next function is interface platform. It allows the computer to run other applications. Some other functions of operating system. It बेस्ट यूज़ ऑफ द कंप्यूटर रिसोर्सेज, ये बहुत अच्छे से कंप्यूटर रिसोर्सेज को यूज़ करता है. इट प्रोवाइड अ बैकग्राउंड फॉर यूज़र प्रोग्राम्स एंड एग्जीक्यूट. इट डिस्प्ले एंड डील विथ एरर्स व्हेन इट हैपन्स. इट कंट्रोल द सिलेक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ द पेरिफेरल्स.
It acts as a communication link between user and system. Protection is very important function of operating system. Now, common operating system and their differences. First is network operating system. The example of network operating systems are Unix, Linux, MS Windows 2000 server. नेक्स्ट इज डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम डॉस भी बोलते हैं. इसमें आते हैं MS विंडोज़ 9X, ME, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डॉस. और थर्ड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि पाम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पॉकेट पीसीज में होते हैं. तो एग्जांपल कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है? विंडो, यूज्ड इन IBM कंपैटिबल माइक्रो कंप्यूटर्स. यूनिक्स एग्जांपल है मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं. वैक्स और VMS जो हैं यूज इन डेक्स वैक्स सीरीज़ ऑफ मिनी कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं. डॉस आपने बहुत सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें नॉन GUI फीचर था, जिसमें हम सारा चीज़ टेक्स्ट बेस्ड रहता था, ब्लैक एंड वाइट होता था. ये डॉस का इंटरफेस आपको दिखा रही हूँ मैं. नेक्स्ट है आपका GUI फीचर, विंडोज़ के साथ आया, जिसमें आप क्या करते हैं, देखो आइकन्स दिखते हैं आपको, इसमें ग्राफिक्स दिखता है, एनिमेशन दिखता है. तो GUI क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी ग्राफिक्स के ज़रिए यूज़र इंटरैक्ट करते हैं. नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स, डॉस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लाइनक्स एंड पाम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पॉकेट PC. तो यूनिक्स जो है वो मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है. डॉस जो है सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है. मैक ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है. MS विंडोज सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है. लाइनक्स मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है. और जो पाम ऑपरेटिंग सिस्टम है या पॉकेट PC है वो सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है. यूनिक्स जो है कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस होता है इसमें. डॉस में कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस होता है. मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI फीचर है. विंडोज़ में भी GUI फीचर है. लाइनक्स में कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस के साथ साथ GUI भी होता है. और पाम ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI होता है. यूनिक्स हैज़ सेवरल वर्जन बट दे लैक इंटरऑपरेटेबिलिटी. है इनमें बहुत सारे वर्जन, लेकिन उनमें क्या है, इंटरऑपरेटेबिलिटी कम है. डॉस हैज़ बीन रिप्लेस बाय MS विंडोज़ ऑपरेशन. डॉस को रिप्लेस करके अब क्या आ गया? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए. मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ ईजी टू यूज़ GUI. बहुत ईजी होता है, इसमें GUI फीचर है. द फर्स्ट ट्रू MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 96 एंड लाइनक्स इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. पाम ऑपरेटिंग सिस्टम दे आर स्पेशली डिज़ाइन फॉर PDA, है ना. लाइनक्स नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है. डॉस डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है. मैक OS भी डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है. MS विंडोज़ भी डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है. लाइनक्स नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है. और जो पाम OS और पॉकेट PC हैं वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं. तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो डॉस है वो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था. इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू कंट्रोल डिस्क ऑपरेशन. देयर आर टू पार्ट्स. फर्स्ट इज स्मॉल सिस्टम डेटा एंड सेकेंड इज डेटा एरिया. तो स्मॉल सिस्टम डेटा क्या करता है? इट कीप ट्रैक ऑफ की इंफॉर्मेशन ऑफ द डिस्क. और डेटा एरिया क्या करता है? वेयर डेटा फाइल्स आर स्टोर्ड. Small system area in DOS. There are three parts. First is boot record, that is a short program for loading DOS into a computer's memory. Second is file allocation table, FAT बोलते हैं इसको, that is record the status of each part of the disk and keep track of all data. Third is root directory, that is record the file name, size of the file,
date and time. It mentions the record of the file name, size of the file, date and time. There some good operating system are those who are efficient, those who are small in size and reliable. So these are the features of good operating system. Now, type of operating system. Type of operating system, there are three types of operating system. First is batch processing system, second is real time operating system, and third is the time sharing processing system. So what is batch processing system? Jobs together with input data are fed into the system in a batch. The job are then run one after another. क्या होता है, जो डेटा है वो जॉब में डिवाइडेड होता है, इनपुट डेटा सिस्टम को बैच में जाता है. द जॉब्स आर देन रन वन आफ्टर अनदर. जॉब फिर क्या होता है, एक के बाद एक रन होते हैं. नो जॉब कैन बी स्टार्टेड अनटिल प्रीवियस जॉब इज़ कम्प्लीटेड. जब तक एक जॉब कंप्लीट नहीं होता दूसरा जॉब स्टार्ट नहीं होता बैच प्रोसेसिंग में. रियल टाइम प्रोसेसिंग में क्या होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स इज़ नीडेड. तुरंत हमको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम रियल टाइम सिस्टम का उपयोग करते हैं. एयरप्लेन लैंडिंग कंट्रोल सिस्टम, यहाँ इमीडिएट एक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है. इंटरप्ट एरर इन कंप्यूटर सिस्टम, ये सब रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम्स के एग्जाम्पल हैं. नाउ टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग. ईच यूज़र इज़ गिवन अ टाइम स्लाइस टू इंटरैक्ट विद द CPU. The size of the time slice will depend on the system and each user is served in sequences. So this is the time sharing operating system. These are the clients and server, and the secondary storage devices are connected with the servers, and server clients are connected with the server. Some special features of operating system: multitasking, multi-programming, parallel processing, buffering and spooling. So what is multitasking? When multitasking is to handle two or more programs at the same time from a single user perception. जब दो या दो से अधिक प्रोग्राम को एक ही समय पर सिंगल यूज़र के द्वारा हैंडल किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग. CPU कैन ओनली परफॉर्म वन टास्क एट अ टाइम. हाउएवर इट रन्स सो फास्ट दैट टू और मोर जॉब्स सीम्स टू एग्जीक्यूट एट द सेम टाइम्स. जो CPU है वो एक समय पर एक ही काम करता है, लेकिन उनका जो काम करने का एक वो जो है टाइम लिमिट इतना कम होता है कि ऐसा हमको लगता है कि एक साथ दो जॉब परफॉर्म किए जा रहे हैं. ये है मल्टीटास्किंग. मल्टी प्रोग्रामिंग, व्हेन टू और मोर प्रोग्राम स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी एट द सेम टाइम. जब एक साथ दो प्रोग्राम को एक ही समय पर मेन मेमोरी में स्टोर किया जाता है तो वो होती है मल्टी प्रोग्रामिंग. व्हेन वन जॉब नीड्स टू वेट, CPU स्विच टू अनदर जॉब टू एग्जीक्यूट. अब जैसे हम क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो कॉपी पेस्ट करने में हमको टाइम लग रहा है, फाइल बड़ी है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, दूसरा जॉब परफॉर्म करने लगता है ना. तो हम साथ में क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्टिंग कर रहे हैं, हम स्पीकर से म्यूज़िक भी सुन रहे हैं और उसी समय हम क्या कर रहे हैं, ड्राइंग भी कर रहे हैं. तो ये क्या हो गई, मल्टी प्रोग्रामिंग. व्हेन द फर्स्ट जॉब फिनिशेस वेटिंग, CPU विल गेट बैक द फर्स्ट जॉब टू एग्जीक्यूट. जैसे ही पहला जॉब ख़त्म होता है तो CPU वापस किस में आ जाता है, दूसरे जॉब को एग्जीक्यूट करने लगता है. नेक्स्ट इज पैरेलल प्रोसेसिंग. व्हेन टू और मोर CPUs इज हैंडल जॉब्स, इट्स कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग. कंप्यूटर नेटवर्किंग में ऐसे ही होता है, एक साथ क्या होता है, पैरेलल ही काम चलता रहता है, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग. बफरिंग, अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया, जिसको हम बोलते हैं बफर, टू रीड डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस और सेंड डेटा टू द आउटपुट डिवाइस. बीच का जो एक टेम्परेरी एरिया होता है उसको हम बफर बोलते हैं. तो ये बफरिंग का काम भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम.
और सीपीयू को हमेशा बिजी रखता है, बिकॉज इनपुट ऑपरेशन इज स्लो, बहुत स्लो होता है, इसलिए वो एक बफर में इनको स्टोर करके रखता जाता है। लास्ट इज पोलिंग, अ लार्जर बफर फ्रॉम हार्ड डिस्क। बफर स्टोर द डाटा थ्रू इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, बिकॉज इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इज स्लो एंड सीपीयू ऑपरेशन इज फास्ट। इसीलिए क्या होता है, एक लार्ज बफर होता है हार्ड डिस्क में जो कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को स्टोर करके रखता है। तो आज के लिए इतना ही। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।